বোরখা না পরেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রী, আর এতে সম্মানহানি হয়েছে বলে মনে করে স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে জানে শেষ করে ঘরেই পুঁতে দেয় স্বামী। বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ থাকায় সন্দেহ হয় ওই বাপের বাড়ির লোকেদের। শ্বশুরবাড়ির এলাকার প্রধানকে বিষয়টা জানালে তিনি গোটা বিষয়টা পুলিশকে বলেন। এরপরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মহিলার স্বামীর কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়লে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। পুলিশে জেরায় অবশেষে ভেঙে পড়ে স্বামী এবং সে জানায় স্ত্রী ও তার দুই মেয়েকে জানে শেষ করে বাড়িতেই মাটিতে পুঁতে দিয়েছে সে। এরপর অভিযুক্ত স্বামীকে নিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি খুঁড়ে দেহগুলো উদ্ধার করেছে। অভিযুক্ত স্বামীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনাটা যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের শ্যামলী এলাকায় এই ঘটনাটা ঘটেছে। জানা গিয়েছে মৃত স্ত্রীর নাম তাহিরা, বয়স ৩৫ বছর। তার স্বামীর নাম ফারুক এবং তাহিরার দুই মেয়ের নাম শারিন এবং আফরিন। মঙ্গলবার ১৬ ডিসেম্বর গ্রামে প্রধান তাহিরা এবং তার দুই মেয়ের নিখোঁজ হবার বিষয়টা পুলিশকে জানায়। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে নেমেই তাহিরার স্বামী ফারুকের কথাবার্তায় সন্দেহ হয় পুলিশের। ফারুককে আটক করে জেরা করা শুরু করেন তদন্তকারীরা। জেরায় ভেঙে পড়ে ফারুক নিজের দোষ স্বীকার করে নেয়। পুলিশে জেরায় ফারুক জানায় স্ত্রী ও দুই মেয়েকে জানে শেষ করে বাড়ির ভেতরেই গভীর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছে দেহগুলো। জানা গিয়েছে কোনো একটা বিশেষ বিষয়ে ফারুকের থেকে টাকা চেয়েছিল তাহিরা, কিন্তু ফারুক দিতে অস্বীকার করলে ওই দম্পতির মধ্যে ব্যাপক কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপর দুই মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় তাহিরা। ওই সময় নাকি বোরখা না পরেই তাহিরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়টা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি ফারুক। স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনার পর আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে জানে শেষ করে দেয় ফারুক। বড় মেয়ে বাঁচতে এলে তাকেও আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে জানে শেষ করে দেয় ফারুক। এরপর ছোট মেয়ে বিষয়টা জানতে পারলে তাকেও শেষ করে দেওয়া হয়। তারপর বাড়িতেই গভীর গর্ত খুঁড়ে দেহগুলো পুঁতে দেয় সে। পুলিশ দেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে জানে শেষ করার ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। তাহিরার বাড়ির লোকেরা সকলেই চাইছেন ফারুকের কড়া শাস্তি হোক। তবে শুধুমাত্র বোরখা না পরার জন্য এভাবে জানে শেষ করে দেবার ঘটনা কিছুতেই মানতে পারছেন না তারা। কি বলছেন মৃতার আত্মীয় আশু চৌধুরী, শুনবো। पूरे प्रकरण का तो अभी पता नहीं लग पाया, क्योंकि पहले से छोटा मोटा विवाद था। जो हमारे गांव की हमारी बहन थी ताहिरा, वो यहाँ गढ़ी दौलत में ब्याई थी और लगभग मेरे हिसाब से 15-16 साल इसकी शादी को हो चुके थे। तो छोटा मोटा विवाद पहले भी हुआ है। अब से पहले जो विवाद हुआ छोटा मोटा, तो ये खुशामद करके लिया था वहां से। अब तो फैमिली वालों को जैसे ही पता लगा कि भाई अभी खुशामद करके जैसे ही लाया था कुछ समय पहले, तो अभी फैमिली वालों को पता लगा कि मिसिंग है। और वो भी उसके फादर ने ही जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसके फादर ने फैमिली वालों को इन्फॉर्मेशन दी है कि ये ऐसे ऐसे मामला है और वो पता नहीं लग पा रहा। उसके संबंध में जैसे ही वहाँ के प्रधान थे राशिद जी, उन्होंने भी इस संबंध में संज्ञान लेते हुए और उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। और प्रशासन ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है कि वो बच्ची उन्हीं के घर से बरामद हुई है। वजह क्या हुई जो उसने अपनी पत्नी को गोली से मार दिया, दो बेटी को मार दिया? तो वजह का तो कोई खास वजह, कोई ऐसी वजह नहीं थी कि ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा हो जाएगा। छोटे मोटे प्रकरण तो चलते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं फैमिली में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि भाई इतना बड़ा कदम उठा देगा कि भाई अपनी पत्नी को भी और अपने बच्चों को भी मार देगा। और ऐसा लग रहा है, प्रतीत होता है जैसे गड्ढा खुदवाया गया है और गड्ढा खुदवाने के बाद में एक तरीके से षड्यंत्र करके मारा गया, फिर गड्ढे में घेरा गया, फिर उसमें दफन किया गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्री प्लान ये सारी चीजें की हो। क्योंकि अगर कोई भी देखेगा तो उसे लगेगा कि प्री प्लान ये योजना बंद तरीके से ये काम किया गया है। तो ऐसा हमें तो लगता नहीं, क्योंकि कई दफा कई इश्यूज होते हैं। कुछ ऐसे टाइप के व्यक्ति होते हैं जो आपने देखा होगा, कुछ सनकी टाइप के व्यक्ति होते हैं जो वो सनकी टाइप के होते हैं कि घर कौन आ गया, ये कौन चला गया, आप कहाँ चले गए। तो वो तो इस तरीके की एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मन गढ़ंत कहानी हो। ऐसा इशू तो नहीं हुआ। बाकी यहाँ का प्रशासन अभी वो जांच कर रहा है, सारे तथ्य पे जांच चल रही है और जैसे जांच में होगा तो सारा खुलासा तो तभी हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं शामली प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए केस का खुलासा किया। उसके लिए तो मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ साथ में मैं यहाँ के प्रशासन से और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये आग्रह करता हूँ, जो इस तरह के केस हैं उन्हें ज्यादा लंबा ना चलाया जाए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है तत्काल चार्जशीट दाखिल कर, और उन्हें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है सख्त से सख्त सजा तत्काल हो जानी चाहिए। মৃতার আত্মীয় মনীষ আহমেদ কি বলছেন, শুনবো। देखो जी, ये तो इसे ही पता है इसने क्यों मारा, पर ये जो है ऐसे काफी टाइम से परेशान कर रहा था लड़की को हमारी।
और इसने जो है लड़की को पहले लड़की को मारा, और जैसे ही लड़की को मारा, वो बड़ी लड़की थी, एक 15 साल के करीब एज है उसकी, वो उसको देख के, अपनी मम्मी को देख के जो छुड़ाने के लिए आई, तो फिर दूसरी गोली उसके मारी। फिर एक बच्चा और जाग गया, वो करीब 6 साल की उम्र है उस बच्चे की, लड़की है वो भी, उसका गला के मारा। ऐसा है जी, देखो वजह का तो उसने ये थाने में बताया कि भाई मैं बिना पर्दे के वो जा रही थी, तो मैंने बुरखे की वजह से इसको मारा। पर वाकई इतनी बड़ी तो कोई वजह नहीं होती बुरखे की, कि भाई बुरखे के लिए जो है कर देगा 3 आदमियों का। गांव वाले भी कह रहे हैं कि ये जो बहू थी घर से किसी ने बाहर भी नहीं देखी। नहीं, आज तक भी नहीं कभी जी। 5 साल के बाद, 5 साल से तो ये हमारे घर पे भी नहीं गई थी। अभी 1 महीना पहले ही घर पे गई थी हमारे, और 1 महीना पहले भी राजी खुशी में फिर गया, और जो है ये लेके आ गया। इसको लेके आने के बाद में जो है इसने क्या नाम जो है 4-5 दिन तक लड़की से हमारी बात हुई। अब 4-5 दिन से हमारी बात नहीं हो रही थी, और जब 4-5 दिन के पीरियड में हमारी बात नहीं हो रही थी, तो इसके बाप का हमारे पास कल फोन गया कि भैया क्या नाम वो लड़की जो है तुम्हारी ताहिरा यहाँ पे आई क्या? हमने कहा भाई यहाँ तो आई नहीं। उन्होंने कहा जी 4-5 दिन से लड़की यहाँ है नहीं। भाई है नहीं तो तुमने हमें खबर क्यों नहीं करी? भाई कहाँ है तुम बताओ। तो फिर इस लड़के का भी फोन गया कि नुको जी क्या नाम जो है लड़की आई क्या वहाँ से? भाई ऐसा तो यहाँ है नहीं, लड़की तो आई नहीं यहाँ पे। तो इसने जो है कोई रास्ता नहीं दिया। फिर इसके बाप का फिर दोबारा फोन गया कि भाई तुम यहाँ आ जाओ और इससे पूछताछ करेंगे, हमें सही बात नहीं बता रहा। और इस बीच में हमें फिर सूचना मिली, पुलिस के द्वारा भी सूचना मिली वैसे भी, भाई तुम्हारी लड़की इसने मार के जो है दाब दी है यहाँ पे, घर में गड्ढे खोद के। तीनों की जो है वहाँ से बरामद हुई। तब हम वहाँ पहुंचे जब पुलिस जो है गड्ढे खोद रही थी। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाह रहे जी, इतनी जो है निर्मम इस आदमी ने करी, पूरे समाज पे जो है इसने दाग लगा दिया एक बहुत गंदा। हम तो ये चाह रहे कि ये सजा होनी चाहिए कम से कम। বোরখা পরে বেরোয়নি স্ত্রী এবং সেই কারণেই চরম প্রতিশোধ। স্ত্রী এবং তার সঙ্গে 2 মেয়েকে একেবারে জানে শেষ করে দিলেন এক ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ির লোক অনুসন্ধান চালায়, পুলিশে খবর দেয় এবং তারপরই স্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে স্বামী এবং তার কুকীর্তির কথা ফাঁস করে দেয়। বোরখা না পরে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন স্ত্রী, আর এতে নাকি সম্মানহানি হয়েছে বলে মনে করে স্ত্রী এবং 2 মেয়েকে জানে শেষ করে ঘরেই পুঁতে দেয় স্বামী। বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর বাপের বাড়ির লোকেদের সন্দেহ হয় শ্বশুরবাড়ির এলাকার প্রধানকে বিষয়টা জানালে তিনি গোটা বিষয়টা পুলিশকে জানান। তারপর তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মহিলার স্বামীর কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়লে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশে জেরায় অবশেষে ভেঙে পড়ে স্বামী। সে জানায় স্ত্রী ও তার 2 মেয়ে জানে শেষ করে বাড়িতেই মাটিতে পুঁতে দিয়েছে সে। তারপর অভিযুক্ত স্বামীকে নিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি খুঁড়ে দেহ উদ্ধার করেছে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।